اور اس وقت ایک بار پھر سے ہم رخ کرتے ہیں، عبدل ججائی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، افغانستان کے سانسد۔ عبدل صاحب، آپ کو آواز آ رہی؟ سب سے پہلے میں بھی ٹرائی کر رہا تھا، اب تک آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ Yeah, I am hearing you very well. اچھا عبدل صاحب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ فی الحال جو ہم تک خبریں آ رہی ہیں، زی میڈیا کے جو رپورٹر ہیں وہ بھی گراؤنڈ پر موجود ہیں، ابھی بھی لوگوں کا وہاں سے آنا جاری ہے، لگاتار وہاں سے لوگ آ جانا چاہتے ہیں، لیکن کل طالبان پریس کانفرنس کر کے کہتا ہے کہ وہ تو سرکار بنا لے گا، اب سب کچھ ٹھیک ہے، بینک کھل جائیں گے، وہاں پیٹرول پمپ کھل جائیں گے، دکانیں کھل گئی، یہ سب ٹھیک ہے۔ کیا ہے حقیقت؟ Yes, you are right. As per my personal information, and which I have a relation in Kabul, I'm talking to my friends and my colleagues there on daily basis. Yes, there is 18,000 people still they are waiting to leave the country. So most of them are those who are working with the American directly or indirectly through their NGOs. Similarly, most of another countries like UK, like Germany and some other European country also they are evacuating their staff and also their citizens and also all those people who are working with those countries or with their militaries. So all those are waiting to leave the country. Yes, at the moment we are talking, as per my information, it is around 20,000 people left Afghanistan for different countries, mostly to America. Yeah, you are right. Yesterday, the Taliban spokesman, Mr. Zabiullah Mujahid, told that that they even warns to the American that please stop this type of activity and do not, leave. To say these people do not leave the country, and maybe after 31st of this month, this process will be stopped. اور ابھی بھی آپ نے جیسے کہا کہ 20,000 لوگ، ایک تو یہ کہ کیا آر یو کمفرٹیبل، کین یو اسپیک بٹ ان ہندی، بیکاز دس از اے ہندی نیوز چینل، آئی نو کہ آپ انگلش میں زیادہ تھوڑے سے کمفرٹیبل ہوں گے، بٹ if you can speak a bit of a Hindi with the English mix, I think that would be better for our viewers. ان کے لیے زیادہ اچھا ہوگا۔ سر ہاں، ایک یہ کہ سر وہ لوگوں کو آپ کیا کہیں گے جب آپ بھاگ کر کے یا پھر ریفیوج کر کے یہاں پر آئے، جو لوگ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ آتنکی نہیں ہے، وہ تو کوئی دہشت نہیں کرے گا، وہ یہ سب نہیں کرے گا، لیکن وہاں تو ابھی سے ہی ہم نے دیکھ رہا ہے لوگوں کو پیٹنا مارنا شروع کر دیا طالبان نے۔ دیکھیے جی، آپ کو پتہ ہے کہ سنس 15 آف دس منتھ سے اگست سے طالبان نے پورا افغانستان کیپچر کیا، انکلوڈنگ کابل، بٹ ملیٹریلی دے کیپچر کابل ان پورا افغانستان کو ایکسپٹ دا پنشیر پروونسز، بٹ ٹل یٹ ابھی تک اس کا وہ نہیں ہے، کوئی پروگرام معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، آگے وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ وہ تو بتا رہی ہے، ہماری بھی اس کا ایڈوائس ہے کہ آپ جو گورنمنٹ بناتی ہے دیٹ شوڈ بی براڈ بیس گورنمنٹ اور انکلوزیو گورنمنٹ، کہ سب جتنا جو ٹرائب ہے وہاں افغانستان میں، اگر پشتون ہے یا تاجک ہے یا ازبک ہے یا ہزارہ، وہ سب اپنے چہرے کو اس گورنمنٹ میں دیکھتے ہیں، تو اس کا بھی یہی پروگرام ہے ایز پر ڈیئر اسپوک مین اور ایز پر دیئر سینئر جو وہ ہے طالبان کا ممبرز ہے، وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ ہم انکلوزیو گورنمنٹ بنا رہی ہے۔ دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمنسٹی، جنرل ایمنسٹی بھی اعلان کیا ہے اور سب کے لیے عامی معافی اعلان کیا ہے، مگر وی ہیو سم رپورٹ، ہمارے پاس کچھ رپورٹ ہے کہ کچھ لوگ ایسا ہے کہ انہوں نے اگر حکومت کو اپنا سرنڈر بھی کیا ہے، اس کو انہوں نے مار دیا ہے۔ میرے پاس ہے ایک ایسا ایگزامپل ہے، جیسے فرا کا جو امنیت کا عامر تھا، فرا ایک بڑی پروونسز ہے، اٹ از کلوز ٹو دا ایران بارڈر، اس کا جو سیکورٹی چیف تھا، اس کو انہوں اپنا آپ کو سرنڈر بھی کیا ہے، ابھی وہ مارا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں اٹ از ٹو ارلی، بہت وقت ہے کہ ہم کہیں کہ کیا ہو رہی ہے۔ وہ جو لوگ افغانستان کو چھوڑنا چاہتے ہیں
they knows that now they cannot stay here, and ये आपको इसी तरीके से जो अभी हुकूमत वहाँ काम कर रही है या तो काम करना चाहती है, इसमें वो काम नहीं कर सकता है, उसमें भी इवन काबुल में वो रह नहीं सकता है. तो मेरे ख्याल में अभी तक जो मैंने कहा था 20,000 लोग अफ़गानिस्तान छोड़ कर गया है, स्टिल 60,000 और भी लोग हैं कि वो एयरपोर्ट रोड पे बैठा है और सब इसका वेट कर रही है ताकि उसकी कोई चांस मिले और अफ़गानिस्तान से वो जाके. हम भी जो लास्ट फ्लाइट था एयर इंडिया के अफ़गानिस्तान से हम यहाँ आए, एंड हमने एक 20 लोग थी, एक ग्रुप थी, 20 लोग, इसमें सब MPA थी, सब इसमें हमारे जहादी लीडर थी और हमारे गवर्नर्स थी, सब एक्स गवर्नर्स थी सम प्रोविंसेस की, और सीनियर एडवाइजर्स थी तो प्रेसिडेंट की. हम सब अभी यहाँ है, अपने एम्बेसी से वो है, अभी उसमें है, इर्तिबात में है, रवाबित में है, रिलेशन में है. तो वी आर हेयर एंड वी हैव अ प्लान टू मेक अ जॉइंट बिग प्रेस कॉन्फ्रेंस, और हम आपको इनवाइट भी करते हैं, सब मीडिया को. उसको बहुत कुछ है बोलने के लिए, बट एट द मोमेंट मेंटली एंड वी आर नॉट स्टिल रिलैक्स, एंड वी हैव अ प्लान कि हम यही 20 लोग जो आया है, सब गवर्नमेंट का सीनियर है, अभी का यहाँ है, कुछ दिल्ली में है, कुछ गुड़गांव में है, और हमारे प्लान है कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बना के और सब कुछ आपके साथ शेयर करें. अभी तक हमारी वो है फैमिली वो है काबुल में है स्टिल, सो वी कैन नॉट शेयर सो मनी थिंग विथ यू. नहीं सी बात है, खतरा होता है क्योंकि जिस तरीके से एक और चीज़, इट्स नॉट ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन तो है नहीं, ये तो बंदूक के दम पर अफगानियों को मार करके और उनके ऊपर कब्जा कर लिया एक तरीके से तालिबान ने. कितना बड़ा रोल आप इसके पीछे पाकिस्तान का देखते हैं? जब वो कर रहा था, सारी दुनिया के सामने नजर आ रहा था, ISI बंदूक दे रहा था और कह रहा था कि हम तो अफगान का भला कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से उसने अफगानियों को ही मारने का काम किया, कह करके कि हम तो अफगान में शांति लेकर के आ रहे हैं. पाकिस्तान, ISI. नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान का एक बड़ा सपोर्टर था वो पाकिस्तान था. इन द सेम टाइम नॉट ओनली पाकिस्तान, मेरे ख्याल में बहुत सी मुल्क ऐसी थी इंक्लूडिंग अमेरिका, जब उन्होंने इस तालिबान को सपोर्ट किया है. इसमें नो डाउट कि सब इसमें वो शामिल है, क्योंकि ये जो चेंजेस आया है और इतने जल्दी से आया है और इतने इमीडिएट पे आया है ये चेंज, इट वाज आउट ऑफ थिंकिंग. किसी ने भी ऐसे नहीं सोचा कि विद इन 1 वीक और 2 वीक ऑल सब गवर्नमेंट का जो सब वो है सब अफगानिस्तान उसके कैप्चर में आए, एक सिर्फ 1 प्रोविंस के वो पंशेर है. यू आर राइट. एक अंतिम सवाल, क्योंकि आपने तो वो 20 साल पहले वाली भी दहशत देखी होगी, बहुत से लोगों को अच्छा लगने लगा है ना ये तालिबान अपने ही देश में, वरना कौन अपना देश, आप बगैर फैमिली के यहाँ पर आ गए, लोग भागना चाहते हैं. जिन्होंने देखा है तालिबान वो लोग अच्छे से बताते हैं. थोड़ा सा बताइए ज़रा कि ये तालिबान को जो लोगों को अब भी प्यार आता है, कि वो तालिबान की एट्रॉसिटी क्या थी, क्या वो करता था. मैं तो अभी भी इंटरनेशनल कई रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ जिसमें कह रहा है कि तालिबान लुक्स फॉर हाउस टू हाउस फॉर गर्ल्स एंड वुमेन फॉर मैरिज. मैं भी लास्ट टाइम जो तालिबान आया थी 1996 में मैं काबुल में थी. 5 साल उन्होंने अफगानिस्तान पे रूल किया है, हुकूमत किया है. I was one of the witness of that 5 years they are ruling in Afghanistan. But this time जो आया है as per their commitment, उन्होंने जो जनरल एमनेस्टी ऐलान किया है, अभी तक जो है ना काबुल में और स्पेशली पूरे अफगानिस्तान में कोई बड़ा वाक़यात नहीं है, छोटा सा वाक़या हो गई है. और दिस टाइम ये जो तालिबान है, ये दिस टाइम जो उसका माइंड है और उस टाइम से इसलिए फ़र्क है क्योंकि इस टाइम ये चाहते हैं कि हुकूमत करे, गवर्नमेंट करे, और गवर्नमेंट में अगर ये गवर्नमेंट करना चाहते हैं तो वैसे भी सबको जनरल एमनेस्टी देना चाहिए सब. बिकॉज अगर ये लोग मिलिटरी कैप्चर किया है अफगानिस्तान को, मगर टेक्निकली दे कैन नॉट रन द गवर्नमेंट रूल,
क्योंकि इसको तो वो नहीं आती है, ये तो तालिबान है, दे आर मिलिटेंट्स, बट दे कैन नॉट रन द गवर्नमेंट. सो मेरे हिसाब से ये सब इसकी ज़रूरत है. और इसका ये भी मेरे मशवरा है कि सब जो लोग हैं अफ़गानिस्तान में, जो वो लिटरेट पीपल है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो टीचर्स है, और जो भी है, उसको सबको ये उसको कहे कि आप आए, अपनी ड्यूटी पे आए और उससे ये यूज़ कर ले और पॉजिटिव यूज़ कर ले. क्योंकि रनिंग ऑफ गवर्नमेंट इज़ नॉट वर्क, यू नो, द जॉब ऑफ तालिबान. इट इज़ द जॉब ऑफ अ टेक्निकल पीपल. So I think they understand. In the same time, this time ये जो है ना, अभी इसको ये भी इसका वो है ना कंसर्न है कि उसका जो हुकूमत बनाती है, जो भी एज पर जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इसका एक 12 लोग का शोरा और कमीशन बना रही है अफगानिस्तान के लिए, जो वो 12 लोग जो है ना इसमें होगा. और ये 12 लोग सब बिल्कुल ठीक कहा कि कोई गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस तो है नहीं, ये तो आतंकी ग्रुप है, शुरू में लड़ते रहे हैं और कबीलाई तरीके से लड़के जो एक बार पहले भी कैप्चर कर लिया था, और अब एक बार फिर से कुछ ऐसी भारी ताकतें जो चाहते हैं अफगानिस्तान जो है डिस्टर्ब रहे, एक बार फिर से कैप्चर कर लिया है. खैर, आप अपने आप को सिक्योर रखिए, फैमिली से बात करते रहिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. आगे भी हम आपसे बात करेंगे. थैंक यू सर. बहुत शुक्रिया आपसे भी. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.